Hello and welcome, I am Sajad and you are watching Kashmir News Service. After the abrogation of 370 and 35A and after turning Jammu and Kashmir in Union Territory, the State Election Commission have decided the DDC polls and polls for vacant posts. We have seen that the mainstream parties who have decided to come together to fight these elections unitedly. However, there are reports that there are some rift in mainstream parties over seat sharing. Earlier, people were believing that these people will not participate in these elections. However, they have decided to contest in these elections. Besides these mainstream political parties, some independent candidates have also decided to try their luck in these DDC polls. I have today with me on the right side one of the independent candidate who is the young dynamic candidate from Tangmarg. He has decided to try his luck to contest for DDC polls from Tangmarg. So I will just go across him, ask him a couple of questions. What made him to contest in DDC polls and what pushed him, what forced him to try his luck? Iqbal Nabi, thank you so much for talking to Kashmir News Service. Thank you so First, much. I would like to know from you, what made Iqbal to contest in these DDC polls? Whatever be the situation in life, you can understand everything. That DDC polls are not in that kind of, it's not that kind of election fever. It is just simply a constitutional power which has given by the government of India to just overall this segment, MLA segment, or we can say anything. But over a period of time, I have seen that people are there who are there already from last 40 to 30 years. They are misfit in this particular constituency regarding the developmental area. We are not endorsing any political thought or any political will on the people. We are here for the developmental work for the people. What I feel from last 30 to 40 years, that there is a lacuna in people in a particular developmental area. The development has not been done to that extent. So you have told me that you are an independent candidate. Yes. You are not from any political party, political thought. So how challenging it is for Iqbal to contest as an independent candidate? What I feel personally that the political parties which are here from last 70 years, they feel that their political vendetta will continue. They have already taken all these decisions in closed rooms regarding all the people of Tangmarg. I feel that it's just a service issue. We can say there are a lot of service issues to the people, and we will come together with the developmental ideology of this particular constituency. Iqbal, I know you from couple of years. I know you were earning a huge amount and you were earning a lot of amount. But despite that, you have decided to left that place and you have decided to come in this place. Why this decision? जहाँ पे अगर मैं ये सोचूं कि मेरा जॉब बड़ा इम्पोर्टेंट था, अगर मैं ये सोचूं कि मेरी जो सैलरी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ उसके साथ साथ कि जितने हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो हमारे रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है यहाँ पे, जो हमारे रिजर्वेशंस नहीं हैं, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने आज तक जो बोला है कि डेवलपमेंट बहुत हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे आप रियलिटी चेक कर सकते हो। मैं अभी भी बोलता हूँ टंगमर्ग मार्केट में 4 स्ट्रीट लगाने से पूरा टंगमर्ग डेवलपमेंट नहीं होता है। टंगमर्ग आवाम का है। यहाँ पे अगर हम देखें रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, यहाँ पे रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। यहाँ पे एक आ रहा था, वहाँ पे बहुत बड़ी एक्सप्लॉइटेशन हुई है हमारे साथ। यहाँ पे ऑलरेडी गुलमर्ग की बात भी हो रही है। आने वाले वक्त में शायद ये हमारे मकानों को भी बोलेंगे कि यही भी हमसे बिलोंग करते हैं, इन मकानों में छोड़ के आप जी यहाँ से निकलो। मेरा मानना है कि टंगमर्ग का आवाम है, टंगमर्ग का फैसला करेगी। गुलमर्ग में जो लड़के आते हैं जो टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, वो गुलमर्ग का फैसला करेंगे। उनको जी आप इस तरह से मत देखिए कि वो गुलमर्ग में आते हैं, डेली रोजगार कमाते हैं। उनके लिए कम से कम यहाँ पे वेजेस होने चाहिए, उनके लिए कम से कम सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स भी होनी चाहिए। जो हमारा गंडोला है वहाँ पे हमारी रिजर्वेशन नहीं है। आम इंसान को मेरा मानना है, मैं एक साल में एक बार जाता हूँ वहाँ पे, कम से कम अगर हम फैमिली के हिसाब से भी जाएंगे 1700 है। So Iqbal, I'm changing you from couple of hours. I have seen that a lot of youngsters are just following you and you have successfully brought this huge crowd around you. I know that in this place we have the PGD Alliance candidate here. We have candidates from Apni party. So you are just getting this crowd around you despite you have the candidates from other parties. मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये क्राउड जो है, ये हक के साथ है, ये उस जुल्म के साथ है जो ऑलरेडी पिछले 70 साल में हुआ है। ये यंग लड़कों ने ही मुझे मजबूर किया कि आप जी फॉर्म भरो। वो ये यूथ जो है ये आज बात समझ रहा है,
आज लैपटॉप इम्पोर्टेंट है बनस्बत की आप जी हल चलाओ। आज हम लड़के को 2 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हमें जूम क्लासेस देने पड़ेंगे अपने लड़कों को, अपने बच्चों को। आज रिलेवेंट है। आज आप देखिए लैपटॉप में एजुकेशन है, लैपटॉप में हेल्थ सेक्टर है, लैपटॉप में ये जो हमें इर्द गिर्द यस आई एम नॉट एंडोर्सिंग पर्टिकुलर लैपटॉप इस वजह से कि मेरा ये है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ेंगे, आप देखिए एजुकेशन कहाँ पहुँचता है। आप टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर के साथ नहीं जोड़ेंगे, आप देखो हेल्थ सेक्टर कहाँ पहुँचता है। यहाँ पे आज टिकट हम करते हैं अमेरिका में, हमें गंडोला में जाना, वहाँ से ही रिजर्व टिकट होती है उस इंसान। इट इंडिकेट्स कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि टंगमर्ग का जितना भी आवाम है, इनके बच्चे जो है जो ये पढ़ाना चाहते हैं इनको, और पढ़ाते भी मेहनत से, चाहे ये गुलमर्ग के साथ काम करते हैं, चाहे रोजगार किसी तरीके से भी कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक तालीम देना चाहते हैं। लेकिन वो तालीम होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कल जाके अमेरिका में कोई बात करे मेरे बच्चे के साथ, टंगमर्ग के बच्चे के साथ। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करता हूं, मैं टंगमर्ग के बच्चे में, ये समझिए कि ये टंगमर्ग का बच्चा है। मेरा बच्चा भी लैपटॉप पे उसके साथ बात करना चाहिए, मेरा बच्चा भी टेक्नोलॉजी के साथ उसके साथ सवाल जवाब करना चाहिए। वहाँ से वो जनाब बोलेगा लैपटॉप के बारे में बात, यहाँ से हमें उसे हल नहीं दिखाना है। उस टाइम हमें दिखाना कि टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन। आपने कहा कि आप एक नई सोच लेके आए, एक नया नारा लेके आए हो, तो कैसे लोग आप पे बिलीव ट्रस्ट करें कि इकबाल नबी जो अब आए हैं ये कुछ नया करेंगे? और इसमें ट्रस्ट की कौन सी बात है कि इकबाल पे ट्रस्ट करें लोग? इकबाल पे मैंने हाथ जोड़ के लोगों से अपील इससे पहले भी की है। इकबाल पे इसलिए ट्रस्ट इस टाइम लोग कर रहे हैं बिकॉज 5 सालों में जब मैं नौकरी में था, मैंने किताबें लिखी है फेसबुक पे रिगार्डिंग सोशल इश्यूज़। मुझे जितना भी यूथ यहाँ पे जानता है इर्द गिर्द चारों ओर, वो देखते हैं कि जब मैं अपना काम करता था, लेकिन उस टाइम भी मुझे सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करना पसंद लगता था और सोशल इश्यूज़ उठाना था। मैं हॉस्पिटल के बारे में बात करूं, वहाँ की फैसिलिटीज़ अगर आप देखें तो आप खुद जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ पेन एक्स्ट्रा हो जाता है, हमें रेफरल वहाँ पे मांगना पड़ता है। अगर आप इर्द गिर्द की डेवलपमेंट देखें, उस टाइम भी मैंने बात की है। मैंने अल्कोहलिज्म के बारे में बात की, मैंने ड्रग्स के बारे में बात की है, मैंने इस आरे के बारे में बात की है, मैंने गुलमर्ग के बारे में बात की है, मैंने वेजेस के बारे में बात की है, मैंने रिसेंटली भी ये इश्यू उठाए हैं। इस वजह से लोगों को लगता है जब ये खुद अपना काम करता था, इसको ज़रूरत नहीं थी इतना जॉब बड़ा छोड़ने के लिए, इतनी बड़ी सैलरी लेके ये इस फील्ड में इसलिए आया बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग इसमें आ गई है और लोग भी समझते हैं कि नहीं इस्तेसाल हुआ है, और इस इस्तेसाल को रोकना इस टाइम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। Iqbal, we know that Kashmir is a tourist place, and particularly this Tangmarg area. So what are the main issues that Iqbal Nabi will work over these issues so this Tangmarg will attract more and more tourists? इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट के लिए, और जो ये मुंसलिक लोग हैं इसके लिए। यहाँ पे टूरिस्ट का ये नहीं देखना है कि जो गुलमर्ग जाते हैं उन्हीं का काम हमें देखना है, हमें ये भी देखना है यहाँ पे ये जो ये अड्डा है, यहाँ पे टंगमर्ग का जो ये मार्केट है, ये मुनहसिर है टूरिज्म पे ही। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग, हम 50,000 पीपल से ज़्यादा लोग गुलमर्ग पे मुनहसिर हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमारे टूरिस्ट जो रिलेटेड जो काम करते हैं, हमारे जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं, गाइड हो, स्लेज वाला हो, घोड़े वाला हो, जो भी है, इनका एक फैसिलिटी होना चाहिए, इनके वेजेस होने चाहिए अगर ये ऐसा काम होता है। क्योंकि टूरिज्म डिपेंड करता है पॉलिटिकली, हम उस पॉलिटिकल टर्फ पे हैं जहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन अगर हम पूरे हिंदुस्तान की देखें या कश्मीर की, हम अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन के साथ वाबस्ता हैं। तो वेजेस सेंटर होने चाहिए और ओवरऑल गंडोला में हक होना चाहिए इसी गाइड का, एक रिस्पेक्ट है ये कि वो टिकट खुद टिकट निकाले। मैं पर्सनली समझता हूँ इसी को हक होना चाहिए, ताकि इससे रिस्पेक्ट बढ़ती है हमारे गाइड की, हमारे घोड़े वाले की, हमारी बाकी चीज़ों की। जब वो खुद ही आता है सब कुछ, देखिए आपने चैनल ड्रग्स की बंद करनी है, आपने रोजगार की चैनलें बंद नहीं करनी है। चैनल यही है कि टूरिस्ट आया, इसके साथ वाबस्ता होना चाहिए यहाँ का गाइड, इसके साथ वाबस्ता होना चाहिए दुकानदार, सोमो वाला, स्लेज वाला। ऐसा एक मैकेनिज्म स्टार्ट करना है। ऐसे मैं नहीं बोलता अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस पे सोच ज़रूरी है। एक टूरिस्ट अगर आया, इसके साथ ये सारे चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक अपना अपना रोज़गार कमाए। सर एक क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से लिहाज में पूछना चाहूँगा। आपने, एज वी नो दैट वी आर लिविंग अ डिफरेंट प्लेस बिकॉज कश्मीर इज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। जब आपने ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट दिस DDC पोल्स, आपके जो फ्रेंड थे या बाकी कुलीग थे जो सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, उनका कैसा रेस्पॉन्स है? कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो नाराज़ होते हैं कि भाई इसमें छलांग नहीं मारनी थी, ये अच्छी बुक, और पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस, यू शुड नॉट गो देयर। सो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने नाराज़ हो गई, कितने पास आ गई? जो आपने पहली बात बोली कि ये पॉलिटिकल डर्टी गेम है, मैं मानता हूँ कि पीपल आर सेइंग, अच्छा पीपल आर सेइंग यस,
people have experience of that. मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर किसी जगह अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो उनका हामी व नासिर उन लोगों का कौन हो सकता है, ये खुद समझ सकते हैं. अगर गुलाम नबी आज़ाद एक अच्छी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा? मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं होते तो कैसा होता. मेरा एक्सपीरियंस यही रहा जब मैंने सोशल मीडिया पे ये बात बोली अपने लोगों से, इनफैक्ट लोगों ने ही बोली, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो इशू है ये हमें समझ लेना चाहिए. यहाँ की जो बात है ये हमें समझ लेनी चाहिए. घर में अगर नलका ख़राब है, लैंप ख़राब है, घर में हमें ही ठीक करने की ज़रूरत है. हमें बिहारियों को नहीं बोलना चाहिए कि आप जी आओ यहाँ पे ठीक करो. यहाँ पे यूपी का नहीं आएगा मेरे घर के मामला ठीक करने में. घर हमारा है, सोसाइटी हमारी है, हम आगे आएंगे, हम ठीक करेंगे. किसी और को ज़रूरत ठीक करने की नहीं है. जब तक हम किसी को पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं देंगे, जब हमें किसी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं देंगे, तब तक ही वो हमारा फैसला कर सकते हैं. जब हम आवाम इकट्ठे होके एक पावरफुल आवाज़ बन के इनसे बात करेंगे तो एक आवाज़ आगे जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट. So what are the main issues at the moment you are going to work if you, in case if you will win these elections? So what will be the main issues you will work over? सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टूरिज्म रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ रोज़गार लोगों को प्रोवाइड करना डिफरेंट तरीके से है. एक मैकेनिज़्म बनाना है जहाँ पे हम टूरिज्म के रिलेटेड जो लोग हैं उनसे एक सलाह मशवरा करके, उनसे बात करके किसी कंसेंसस पे पहुँचे. तीसरा हॉर्टिकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट मसला है यहाँ पे. हॉर्टिकल्चर के हमारे माशाल्लाह एक मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम है हॉर्टिकल्चर में, हमारा वो प्रोडक्शन नहीं आता है ड्यू टू सरप्लस ड्रग्स, सॉरी ये जो हम बोलते हैं कि जो एग्रोकेमिकल्स है वो बड़ी प्रॉब्लम है. कशिर पर तमन वना इमो हसा दी सब स्टैंडर्ड दवा बागन खतर, उसमें भी हमें काम करने की ज़रूरत है. बागन ति नेरान कहीं ये एक्सपेक्ट करान क्या दवा साफ और कह सू दवा ये खेवान कहीं. कम से कम इस मार्केटस में दवा अत पर काम करने की ज़रूरत. तो लोगों को ये चीज़ें इशू समझाने की ज़रूरत है और ओवरऑल इन पे काम करने की भी ज़रूरत है. मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आसमान दूंगा, मैं ज़मीन दूंगा, मैं तारे दूंगा लोगों को, लेकिन इतना मैं समझता हूँ जहाँ पे लोग परेशान हैं वहाँ पे कम से कम इनके साथ बात भी करूँ. कम से कम जो एरोगेंस है ब्यूरोक्रेसी की, वहाँ पे जो ये लोग भाग रहे हैं, जो लोग ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे इनसे बात नहीं होती है, कम से कम वो तो रोक ले किसी हद तक. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मेरे. So before I conclude this conversation, would you like to share any message for your supporters, for other people? मैं चाहता हूँ कि यूथ को मैं एक बार फिर बोलूँ, मैं कश्मीर की आवाम को फिर बोलूँ, मैं टंगमर्ग की आवाम को एक बार फिर बोलूँ कि ये डेवलपमेंट का मसला है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है. हम डेवलपमेंट के हिसाब से जाएंगे. हम डेवलपमेंट खुद अगर नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा. हमें खुद निकलना है. सोसाइटी हमारी है, बाकी चीज़ें हमारी हैं. हमें इस बात का फैसला खुद करना पड़ेगा. कोई और इस बात का फैसला करने नहीं आएगा. ना ये सोचो अगर हमने ग्राउंड किसी और को दिया, किसी को भी अगर हम अंदर रहे, हमने किसी और को ग्राउंड दे दिया, तो जितनी खराबियां हुई थी उससे ज़्यादा खराबियां होने वाली है. तो आपने मैच्योरली ये डिसीजन लेने हैं, आगे आना है, आगे बात करनी है. थैंक यू सो मच. So we are wishing you good luck. So this was the independent candidate Iqbal Nabi from Tangmar. He has clearly said that I'm not going to promise you sun and stars, but I will try my best to deliver all the things which we are in need at the moment in this place. I'm Sajjad for Kashmir News Service from Tangmar.